preparation of final accounts sole trader. So students we know हमें पता है that final accounts means three accounts. जब भी हम final accounts की बात करेंगे we will be talking about trading account, P&L account and balance sheet. So in this chapter आपके पास proper questions आएंगे with adjustments in which you have to prepare the trading account, P&L account and a balance sheet. So जैसे हमने final accounts के questions हमारे स्कूल टाइम में करे थे just like that proper questions आएंगे with all the adjustments. So quickly revise करते हैं what is a trading account. So trading account tells us about the gross profit or the gross loss incurred by the firm during an year. So trading account से हमारे को gross profit और gross loss के बारे में information मिलती है. So you can see the pro forma trading account. So trading account में debit side हमारे पास आएंगे opening stock of raw materials, work in progress, finished goods. Then we have purchases. अगर कोई भी हमारी purchases returns हैं तो या तो हम उसे credit side पर लिखें या हम उसको debit side में से ही deduct करें. Purchases less purchases returns or return outward. Then if there are any direct expenses. So direct expenses क्या होते हैं? The expenses incurred in acquiring and bringing goods purchased to the business premises. अब आपने तो अपने goods purchase कर लिए हैं. Now to bring that goods, जब उन goods को आप अपने business premise में लेकर आएंगे तो उसके regarding जो जो expenses हुए आपने goods खरीद लिए. Now to bring that goods to your business, आप अपने business premises में अपनी location पर जब वो सामान लेकर आओगे अपने purchases, so उस regarding जो भी आपके expenses होंगे ना, that will be your direct expenses. Like freight is your transportation. कार्टेज पे करा है आपने, कैरेज इनवर्ड परचेज, अगर कोई आपने इम्पोर्ट ड्यूटी पे करी है, क्लीनिंग चार्जेस, डॉक चार्जेस. तो डॉक ड्यूज जब आपका सामान बाय शिप आ रहा है, लाइक इम्पोर्ट ड्यूटी अगर आप बाय एयर आपका सामान आ रहा है, देन एक्साइज ड्यूटी एंड देन ऑक्ट्राई. तो बेसिकली दीज आर द डायरेक्ट एक्सपेंसेस व्हिच आर पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट. नेक्स्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस. अगर कोई फैक्ट्री एक्सपेंसेस है लाइक लाइटनिंग, हीटिंग, रेंट, रेट, इंश्योरेंस ऑफ फैक्ट्री. तो स्टूडेंट्स हमेशा अपने ध्यान में रखना है दैट ऑल द डायरेक्ट एक्सपेंसेस कम्स अंडर द ट्रेडिंग अकाउंट. एंड अगर कोई भी फैक्ट्री एक्सपेंसेस करे गए हैं लाइक लाइटनिंग, हीटिंग, रेंट एंड रेट ऑफ फैक्ट्री से रिलेटेड, देन ऑल्सो दे विल कम अंडर द ट्रेडिंग अकाउंट. Then if credit side is more, then there's a gross profit, right? In the credit side trading account में हम क्या शो करते हैं? Sales less sales return, or return inwards. So always remember purchases return or purchases returns outward, sale return or return inward. So जब आपका सामान आपके पास वापस आता है sale return, so it is coming back to you, इसको हम बोलते हैं return inward. और जब हम purchases return करते हैं तो हमने सामान बाहर से खरीदा, अब हम उसे वापस दे रहे हैं, so outward, that is return outward. So then we have closing stock, and then if debit side is more, then there is a gross loss. So ये प्रोफॉर्मा था हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का. हम ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाते हैं? टू फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस फ्रॉम द परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड. सो हमारे एक अकाउंटिंग पीरियड में जो भी ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस इनकर हुआ, टू नो अबाउट दैट वी प्रिपेयर द ट्रेडिंग अकाउंट. Now let's talk about the P&L account. Now since हमें पता है gross profit and gross loss के बारे में we come to know up from the trading account. Now profit and loss account tells us about the net profit or net loss incurred by the firm. Now after the calculation of gross profit or gross loss, the next step is to prepare the P&L account to determine or find out the amount of net profit of the business enterprise. So ये हमें सबको पता है that once we have prepared the trading account, अब हमारा next step क्या होगा? To prepare the P&L account. So this P&L account tells us about the net profit or net loss incurred by the firm. So let's look at the pro forma for the P&L account. So in the P&L account, in the debit side, we have all the indirect expenses. See students, अगर हमारे पास trading account में सारे direct थे, so all the indirect comes under the P&L account like advertising, bad debt, carriage outward, warehouse. Students, carriage inward will always be a direct expense. ये ध्यान रखना आप, carriage inward हमारा हमेशा trading का part होगा and carriage outward will be the part of the P&L account. So other expenses like bad debt, cash discount allowed, advertising, motor expenses, bank charges, interest paid, if there's any audit fees, telephone, accountancy fees, any other expenses, वो सारे हमारे P&L account के part होंगे.
सी P&L अकाउंट इज डेबिटेड. कब P&L अकाउंट में डेबिट साइड में हम लिखेंगे जब देयर इज अ ग्रॉस लॉस. तो ग्रॉस लॉस हम ट्रेडिंग अकाउंट से ट्रांसफर करेंगे. इफ देयर आर एनी एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस, अगर आपने कोई रेट अपने ऑफिस का रेंट पे करा है, रेट टैक्सेस पे करे हैं, देन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं, सैलरीज, इंश्योरेंस, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, पोस्टेज, टेलीग्राम. If there are any selling and distribution expenses हैं, carriage, advertisement, freight. If there are any maintenance expenses, repair, depreciation of fixed assets, financial expenses, miscellaneous expenses. So all these things will come under the P&L account. Now in the credit side, जब भी trading account में gross profit होगा, we'll transfer the gross profit from the trading account. And then if there are any indirect incomes like cash discount आपको receive हुआ है, interest receive हुआ है, then if there is any incidental income again, if there is any rebate, interest receive, interest on dividend, rent receive, gain on sale of asset, discount on creditor. So जब भी कोई भी indirect income होगी, that will be on the credit side. और debit side में आपकी सारी expenses होंगे, all the indirect expenses. Now students, अब हमारे पास आ जाएंगी adjustments, जो बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर स्टार्टिंग और बिफोर प्रोसीडिंग विद द क्वेश्चंस. डिफरेंस बिटवीन आउटस्टैंडिंग इनकम एंड अक्रूड इनकम. सो स्टूडेंट्स, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है. आउटस्टैंडिंग इनकम. सो आउटस्टैंडिंग इनकम मींस एनीथिंग, means that amount of income which is due and receivable but not received. So any income which has become due but not received. Supposedly आपकी सैलरी है फॉर फुल ईयर, लाइक अभी हमारा जनवरी चल रहा है, सो आपकी 12 मंथ्स की सैलरी है फ्रॉम अप्रैल 2020 टू मार्च 2021. सो दिस इज वन 12 मंथ सैलरी. सो अकॉर्डिंग, अगर सपोजिटली दिसंबर तक सैलरी पे कर दी है, राइट, एंड जनवरी की सैलरी जो है विच हैज बिकम ड्यू बट नॉट येट रिसीव. तो जनवरी तक आपकी जो सर्विसेज है वो फर्म ने ले ली है, लाइक इट्स 18 जनवरी. आप सपोज करके चलो कि अभी फरवरी मंथ चल रहा है एंड जनवरी की सर्विस हो गई है, एम्प्लॉय ने पूरा जनवरी काम करा है एंड ड्यू हो चुकी है, बट दैट पर्सन हैज नॉट येट बीन पेड. सो ये एक हमारे लिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया अगर हमने किसी की सैलरी पे करनी है. अगर आपको सैलरी मिलनी है, सो दैट इज योर आउटस्टैंडिंग इनकम. फॉर एग्जाम्पल दिसंबर जा चुका है, दिसंबर का एग्जाम्पल लेते हैं कि अभी तक आपको दिसंबर की सैलरी नहीं मिल रही. सो दिसंबर की सैलरी हैज बिकम ड्यू बिकॉज अब जनवरी आ गया है, दिसंबर आपने पूरा महीना काम करा है. सो मीन्स दैट अमाउंट ऑफ इनकम हैज बिकम ड्यू but not yet received. So outstanding income वो होती है which has become due but not yet received, and you have a legal right to receive it immediately from the other party. So this is outstanding income. चाहे outstanding income हो या outstanding expense हो, so दोनों का meaning same रहेगा in terms that either the expense or the income has become due but not yet received. Now second term is accrued income. Accrued income means the amount which has been earned but not yet due. Earned but not yet due. The accrued income is calculated on day-to-day basis and there is no legal right to force the other party to pay it immediately. Suppose a firm has invested 50,000 in 12% debentures. Interest is payable half yearly on 30th June, December respectively. The firm closes its books on 31st March. Now the interest has not been paid by the company for the half year ending 31st December. Even on 31st March, it is a case of outstanding interest, but interest for 3 months, January to March, is accrued in the sense that simply earned but not due or receivable. So basically, students, accrued income means the income which has been earned but not yet received. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी कोई इन्वेस्टमेंट करा है एंड देन उस पर आपको इंटरेस्ट ड्यू हो चुका है, राइट, उस पर आपको इंटरेस्ट ड्यू हो चुका है बट अभी तक आपको मिला नहीं, सो दैट इज एन अक्रूड इनकम, अर्न बट नॉट येट रिसीव्ड. So let's talk about now about the manufacturing account. So basically students, हमारे जो एग्जाम में आएगा, we will get questions to prepare trading account and P&L account. Manufacturing account बहुत rare cases में आएगा, but still we will discuss about it. Manufacturing account क्या होता है? Many business entities engage in manufacturing activities and this involves the purchasing of raw material and incurring labor and other costs in converting the raw material into finished goods. So basically बहुत सारे ऐसे business होते हैं जो manufacturing activities में involve होते हैं. So उनके लिए important होता है टू ascertain the cost of producing the good. जब हमें cost of producing the good calculate करनी होती है, so then we prepare the manufacturing account before preparing the trading account. So trading account बनाने से पहले हम manufacturing account prepare करते हैं when we want to know about the cost of producing a good. Okay students, so cost of producing the good जब हमें calculate करनी होती है, then we prepare the manufacturing account. So manufacturing account में हम details डालते हैं regarding the opening stock, हमारी क्या purchases थी,
carriage and wood, direct labor expenses, direct expenses, factory rent, fuel, factory insurance, depreciation on factory building. एंड इन द क्रेडिट साइड हम शो करते हैं रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस. तो हमारे पास सो बैलेंसिंग फिगर जो होती है वो होता है कॉस्ट ऑफ द गुड्स ट्रांसफर टू द ट्रेडिंग अकाउंट. सो जब हमें कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द गुड कैलकुलेट करनी होती है देन वी प्रिपेयर द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट. तो ट्रेडिंग अकाउंट हमने डिस्कस कर लिया. वी डिस्कस्ड अबाउट द P&L अकाउंट. वी हैव आल्सो टॉक्ड अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट. सो द लास्ट सेक्शन इज बैलेंस शीट. सो हम सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, देन P&L अकाउंट बनाते हैं, एंड इन द लास्ट वी डू द बैलेंस शीट. So balance sheet is the position statement of the firm. Balance sheet हमें बताती है about the assets and the liabilities जो firm के पास है. तो this statement of assets and liabilities on the closing date of the given accounting period is known as balance sheet. Now there is a classification of assets. आपकी information, आपकी knowledge के लिए assets बताए गए हैं कि different types के होते हैं. We have current assets, we have liquid assets, then we have current assets हमारे वो assets हो गए which can be easily converted into cash. So liquid assets हमारे वो वाले assets हो गए which can be easily converted more than the current assets. So हमारे liquid assets में हमारे सारे current assets आएंगे except the stock, except the inventory because inventory बहुत time लेती है to convert it into cash, right? And then if there are any prepaid expenses, कोई आपने prepaid अपने expenses pay करे हुए already जो आपने अपने current assets से दिखाए हुए, so they are not part of the liquid assets. Then assets में हमारे investments आती हैं, fixed assets आते हैं, tangible fixed assets आते हैं, intangible fixed assets आते हैं, wasting fixed assets आते हैं, fictitious assets, and then we have contingent assets. So let's talk about the wasting fixed assets. ये कौन से assets होते हैं? These are the assets which are used up or consumed in the course of working. So wasting fixed assets हमारे वो assets हो गए जो हम total consume कर लेते हैं काम करते वक्त. जैसे अगर आपके पास कोई mines हैं, oil wells हैं, so these are wasting fixed assets जिनकी 100% consumption हो जाएगी when we use them. So oil wells है, आप सारा तेल निकाल लोगे wells में से. So these are wasting fixed assets. Then we have fictitious assets. So fictitious assets are fake assets. ये assets नहीं होते. इनको सिर्फ हम एसेट साइड में शो करते हैं बिकॉज दे अपीयर इन द एसेट साइड सिंपली बिकॉज ऑफ अ डेबिट बैलेंस इन अ पर्टिकुलर अकाउंट नॉट येट रिटन ऑफ. सो बेसिकली ये एक फिक्टिशियस एसेट्स है जो एसेट्स होते नहीं है, बस इनको हम अपनी बैलेंस शीट में एसेट साइड दिखाते हैं बिकॉज ये कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जिनका हमारे पास डेबिट बैलेंस होता है इन P&L अकाउंट. फॉर एग्जाम्पल एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट. सो ये एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट को अभी हम राइट ऑफ नहीं कर रहे इस साल, इसलिए इसका डेबिट बैलेंस है और इसको हम फिक्टिशियस एसेट्स में शो करते हैं. देन वी हैव कंटिंजेंट एसेट्स. So contingent assets which depends upon happening of a certain event. For example, if that event happens, the asset becomes available, otherwise not. For example, sale agreement to acquire some property. So अगर जब agreement होगा, then only we will acquire that property. तभी हम अपनी books में उसको asset show करेंगे. Hire purchase contracts, uncalled share capital of a limited company. So in the absence of any legal right to the properties at that time, these properties are recognized only as contingent assets. For example, students अगर कोई insurance claim है, तो जब तक claim आपका पास नहीं होगा, आप उसको अपना asset नहीं declare कर सकते insurance income को. कंटिजेंट एसेट्स हमारे वो एसेट्स होते हैं व्हिच डिपेंड्स अपॉन द हैपनिंग ऑफ अ सर्टेन इवेंट, राइट? सो अब जो हमारा टॉपिक है वो है एडजस्टमेंट्स एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. हम वेरी स्लोली एक एक एडजस्टमेंट के ट्रीटमेंट को डिस्कस करेंगे बिफोर प्रोसीडिंग विद द क्वेश्चन. लेट्स स्टार्ट विद द एडजस्टमेंट्स. So let's start. Number one, adjustment is of closing stock. So closing stocks, students do one thing to note is कि जितनी भी हमारी adjustments होंगी उनके दो impact होंगे. Adjustment है तो दो effect हमेशा होंगे, dual effect always. So अपने mind में हमेशा ये बात रखना कि अगर कोई adjustment हमें given है, so it will have two effects, right? अगर हमारी first adjustment है closing stock, so closing stock को हम सबसे पहले अपने trading account में show करते हैं in the credit side trading account के. The second effect of closing stock is in the balance sheet. हमारे asset side में balance sheet में हम show करेंगे closing stock. तो students बहुत ध्यान से हर adjustment को understand करना है and जो भी adjustment आप चाहते हो मैं दोबारा repeat करूँ, then you can note it down and last 10 minutes में आप दोबारा बोलना and then I will explain it again, right? Second adjustment is outstanding expenses. So outstanding expenses क्या होते हैं? Which has become due but not yet paid. आपके कुछ outstanding expenses हैं, आपने salary pay करनी है अपने employees की. अगर हम कहते हैं outstanding salary, so it means वो outstanding expense है आपके लिए, वो ड्यू हो चुकी है सैलरी बट आपने अभी तक पे नहीं करी. फॉर एग्जाम्पल दिसंबर मंथ की सैलरी अगर आपकी आपकी कंपनी है, आपकी जो एम्प्लॉइज है उनकी आपने सैलरी पे नहीं करी फॉर दिसंबर मंथ, सो वो ड्यू हो चुकी है बिकॉज उन्होंने सर्विसेज दे दी है दिसंबर मंथ के लिए, राइट? एंड स्टिल आपने पेमेंट नहीं करी, सो इट्स एन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस फॉर यू.
सो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर सैलरी आ रही है, राइट? तो आप ये जो एक्सपेंस है, फॉर एग्जांपल आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो दिस विल बी एडेड, आप ऐड करोगे इसको पी-एन-एल अकाउंट में, एंड देन सिंस ये आउटस्टैंडिंग सैलरी है, अभी तक आपने पे नहीं करी, तो ये फर्म के लिए एक लायबिलिटी है। तो इसका सेकंड इम्पैक्ट होगा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। ओके स्टूडेंट्स? थर्ड एडजस्टमेंट इज प्रीपेड एक्सपेंस। सो प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे लिए एसेट है बिकॉज हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं, तो बैलेंस शीट में एसेट साइड में, एंड ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट में हम इसको, अगर हमारे पास प्रीपेड एक्सपेंसेस फॉर एग्जांपल प्रीपेड रेंट है, तो हम इसको पीएनएल में से डिडक्ट करेंगे। जो भी हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस होंगे वो लेस करेंगे बिकॉज ये प्रीपेड है, हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं, तो हम उसको डिडक्ट करेंगे बिकॉज पीएनएल में सिर्फ करंट ईयर के एक्सपेंसेस हम रिकॉर्ड करते हैं। आउटस्टैंडिंग कुछ भी होगा, हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होंगी, तो वो ऐड बैक होंगे। ऐड प्रीपेड हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं, सो दैट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम एक्सपेंसेस। नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अगर आपको एडवांस इनकम रिसीव हो चुकी है, सो इट मींस आपको पहले से फॉर एग्जांपल नेक्स्ट ईयर 2022 की इनकम रिसीव हो चुकी है, सो पीएनएल में से आप उसको रिड्यूस करोगे, डिडक्ट करोगे, बिकॉज हम पीएनएल में सिर्फ करंट ईयर के एक्सपेंसेस शो करेंगे। एडवांस इनकम आ चुकी है, तो इट रिलेट्स टू द नेक्स्ट ईयर। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू टेल अबाउट द करंट ईयर प्रॉफिट और करंट ईयर लॉस। तो करंट ईयर की ट्रांजैक्शंस ही हम रिकॉर्ड करेंगे अपने ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट में। नाउ इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, तो आपको ऑलरेडी एडवांस में इनकम रिसीव हो चुकी है, सो इट विल बी शोन ऑन द लायबिलिटी साइड। आपको एडवांस में इनकम रिसीव हो चुकी है, आपको सर्विसेज अभी अपनी पे करनी है, आपको एडवांस सैलरी मिल चुकी है, एडवांस आपको सैलरी मिल गई है, बट आपको तो अभी अपनी सर्विसेज देनी है, सो इट इज अ लायबिलिटी फॉर यू। अक्रूड इनकम इज इनकम अर्न्ड बट नॉट येट रिसीव्ड। आपने अर्न कर लिया है बट अभी तक आपको रिसीव नहीं हुई, सिंस यू हैव अर्नड इट, आपने अर्न कर लिया है, तो वो आपके इनकम में ऐड होगी, एंड इट विल बी शोन ऑन द एसेट साइड बिकॉज ये अक्रूड इनकम है, आप इसको अर्न कर चुके हो बट बस आपको मिली नहीं है, ड्यू हो चुकी है बट नॉट येट रिसीव्ड। बैड डेट से, सो बैड डेट्स आर एडेड इन द पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड में आप बैड डेट शो करोगे, और इन द बैलेंस शीट क्या इम्पैक्ट होगा? जो हमारे डेटर्स हैं, डेटर्स में से हम रिड्यूस कर देंगे बैड डेट्स, सो हमें पता लगेगा दैट हमारे पास नेट डेटर्स कितने हैं, डेटर्स लेस द बैड डेट्स। नाउ इम्पोर्टेंट पॉइंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऑन डेटर्स। सो जब भी हम प्रोविजन क्रिएट करते हैं हमारे डाउटफुल डेट्स के लिए, सो न्यू रिजर्व माइनस ओल्ड रिजर्व इज द फाइनल फिगर। सो जब भी हमें प्रोविजन क्रिएट करना होगा, तो हम इसमें ध्यान रखेंगे न्यू रिजर्व कितना है हमारे पास, कितना हमने बनाया है, कितना हमारे पास ओल्ड रिजर्व था, एंड द फाइनल फिगर। सो जो भी प्रोविजन होगा वो हम रिड्यूस करेंगे फ्रॉम द नेट डेटर्स। डिडक्ट न्यू रिजर्व फ्रॉम डेटर्स ऑन एसेट्स। सो एसेट साइड में जो भी हमारे डेटर्स होंगे उसमें से हम रिड्यूस करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऑन डेटर्स। सो एक इम्पैक्ट प्रोविजन का आएगा पीएनएल अकाउंट में, अनदर इम्पैक्ट विल कम अंडर द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स का भी सेम है। डिस्काउंट ऑन डेटर्स, अगर हम डेटर्स को डिस्काउंट दे रहे हैं, इसके लिए प्रोविजन है, तो ये भी हम पीएनएल अकाउंट में शो करेंगे, एंड दिस अमाउंट विल आल्सो बी डिडक्टेड फ्रॉम द डेटर्स। सो एसेट साइड में डेटर्स में से हम सबसे पहले बैड डेट्स रिड्यूस करेंगे, तो नेट डेटर्स आएंगे। नेट डेटर्स में से हम प्रोविजन लेस करेंगे, प्रोविजन फॉर अगर हमने बैड डेट्स बनाया है, डाउटफुल डेट्स, तो वो रिड्यूस करेंगे। अगर कोई प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स है, तो उसको भी रिड्यूस करेंगे। अगर डिस्काउंट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स है, तो ये भी पीएनएल अकाउंट में आएगा, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, एंड क्रेडिटर्स का के लिए जो भी हमारा सेकंड इम्पैक्ट होगा, सो इट विल कम अंडर द लायबिलिटी साइड। देन इफ डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट भी पहले पीएनएल में डेबिट साइड, एंड देन हम अपने एसेट साइड में से एसेट को रिड्यूस करेंगे, एसेट माइनस द डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड लोन। अगर आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, तो पीएनएल में क्रेडिट साइड में आपके लिए इनडायरेक्ट इनकम है, आप वहां दिखाओगे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमारे लिए एसेट है, तो हम इसको, हमारे पास अगर एसेट है इन्वेस्टमेंट का, तो उसमें ऐड कर देंगे, ऐड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अनइंश्योर्ड गुड्स लॉस्ट, अनइंश्योर्ड गुड्स अगर हमारे लॉस्ट हो चुके हैं, दे आर अनइंश्योर्ड, तो शो कॉस्ट ऑन क्रेडिट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, शो कॉस्ट ऑन डेबिट ऑफ पीएनएल अकाउंट। सो स्टूडेंट्स, इसका इम्पैक्ट बैलेंस शीट में नहीं आएगा, इसके दोनों इम्पैक्ट ट्रेडिंग में आएगा एंड पीएनएल अकाउंट में आएगा। अगर आपके गुड्स लॉस्ट हो गए, गुम गए, सो आप अपने पहले तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में शो करोगे अनइंश्योर्ड गुड्स लॉस्ट, राइट, एंड सेकेंड इम्पैक्ट होगा आपका डेबिट साइड ऑफ द पीएनएल अकाउंट। 13th adjustment is goods lost इंश्योरेंस क्लेम ड्यू। सो जब भी आपके गुड्स लॉस्ट होंगे एंड आपका इंश्योरेंस क्लेम ड्यू है, तो सबसे पहले आप क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाओगे गुड्स लॉस्ट फुल कॉस्ट पर, ठीक है। देन आप पीएनएल अकाउंट में अपना क्लेम शो करोगे कि इतने के तो आपके गुड्स गए। फॉर एग्जांपल गुड्स लॉस्ट बाय फायर, 5000 के गुड्स लॉस्ट हुए, तो सबसे पहले आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में 5000 के लॉस बाय फायर, स्टॉक लॉस बाय फायर शो करोगे। देन इन द पीएनएल अकाउंट में आप क्लेम शो करोगे कि कितने का क्लेम आपको रिसीव होगा। देन जितने का भी क्लेम आपका ड्यू है, वो आप अपना एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट में भी शो करोगे।
फॉर एग्जाम्पल 4,000 के कुछ लॉस बाय फायर है एंड आपको 2,000 का क्लेम रिसीव होगा, ड्यू होगा, तो पीएनएल में आप उतना दिखाओगे एंड जो भी आपका क्लेम ड्यू है दैट विल आल्सो कम इन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। गुड्स गिवन अवे एज सैंपल, तो अगर जब सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन में गुड्स जाते हैं तो आप उनको अपने परचेजेस में से लेस करोगे डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट and it will also be shown in the debit side of the P&L account. So goods given as sample purchases में से less होंगे and next impact होगा debit of the P&L account. Goods taken by proprietor, जब भी स्टूडेंट्स ड्राइंग्स होंगी तो क्रेडिट साइड से ट्रेडिंग अकाउंट में गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर वहां शो करेंगे एंड देन डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। सो सिंस इट्स अ ड्राइंग, ये प्रोप्राइटर ने गुड्स विड्रॉ करे हैं तो ये डेबिट टू कैपिटल अकाउंट हम बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज में शो करेंगे। अनरिकॉर्डेड परचेजेस, कुछ परचेजेस थी जो हमने रिकॉर्ड नहीं करी, सो ऐड टू परचेजेस एट एज पर ट्रायल बैलेंस। सो जो भी आपके ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक परचेजेस हैं वहां पर वापस ऐड बैक करो। ऐड टू क्रेडिटर्स एज पर ट्रायल बैलेंस, अगर आपने अनरिकॉर्डेड परचेजेस है, आपने कुछ क्रेडिट परचेज करी है तो आप अपने बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स भी इंक्रीज करो एंड देन अगेन आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट में परचेजेस भी इंक्रीज करो। अनरिकॉर्डेड सेल्स है तो ट्रेडिंग अकाउंट में भी दिखाओ, अगर क्रेडिट सेल्स है तो आप अपने डेटर्स को भी इंक्रीज करो। Capital expenditure treated as a revenue expenditure. Deduct from expense account, add to asset account. अगर आपका कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर था जिसको आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर शो कर दिया, फॉर एग्जांपल आपने कोई मशीनरी परचेज करी थी एंड आपने उसको शो कर दिया दैट आपने कोई रिपेयर पे एक्सपेंस करा है, तो क्या करोगे आप अपने एक्सपेंस अकाउंट को रिड्यूस करोगे बिकॉज रिपेयर्स तो हुई नहीं, एक्सपेंसेस तो हुए नहीं, आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर करा है। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर इज द एक्सपेंडिचर ऑन फिक्स्ड एसेट्स, व्हेनेवर वी एक्वायर एन एसेट तो आप अपने एसेट को इंक्रीज करेंगे, राइट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड। अगर आपको किसी ने बीआर बिल रिसीवेबल इशू करा था, इट मींस दैट ऑन अ सर्टेन डेट आपको इतना अमाउंट रिसीव होगा, नाउ दैट हैज बिकम डिसऑनर्ड, आपको अब वो अमाउंट रिसीव नहीं होगा। सो तो आप ऐड बैक करोगे डेटर्स। आपने जब आपको बिल रिसीव हुआ बीआर तो आपने क्या करा, अपने डेटर्स को कम करा एंड आपने एक और लाइन आइटम बनाई, अपने एसेट्स में बिल रिसीवेबल की एंट्री करी। नाउ दैट हैज बिकम डिसऑनर्ड, सो आपके अब जो डेटर्स हैं वो अब वापस से इंक्रीज हो गया बिकॉज जो बिल रिसीवेबल से मनी आना था दैट हैज बिकम डिसऑनर्ड, तो आप अपने डेटर्स को इंक्रीज करोगे। सेकंड इज डिडक्ट फ्रॉम बीआर, सो बिल रिसीवेबल जो है आप उसको लेस कर दोगे कि बिल रिसीवेबल डिसऑनर हो गया, उसको खत्म करा आपने, कैंसिल आउट करा एंड डेटर्स फिर से इंक्रीज करे। सिमिलरली बिल्स पेबल डिसऑनर, सो बिल्स पेबल डिसऑनर से आपके वापस से क्रेडिटर्स इंक्रीज हो गए एंड डिडक्ट फ्रॉम बिल्स पेबल, सेम। So let's discuss first the profit on sale of assets. So जब भी हमें आपको कोई indirect income receive होगी, indirect gain होगा, so वो credit side में आएगा P&L के profit on sale of asset, and whenever there's a profit on sale of asset, so this will be deducted written down value from asset account. So asset में से हम depreciation less करते हैं और अगर हमारे को कोई profit on sale of asset है तो वो भी हम reduce करेंगे। अगर loss on sale of asset है, loss on sale of asset है तो ये loss है, it's an expense, तो debit side आएगा P&L में and this will also be deducted from the asset account. डेफर्ड एक्सपेंस क्या होते हैं, जिनका बेनिफिट फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड है, सो दिस अमाउंट शैल बी रिटन ऑफ, तो पीएनएल में हम दिखाएंगे, राइट ऑफ करेंगे ये एक्सपेंस एंड हमारे एसेट साइड में भी ये अमाउंट शो होगा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। कैपिटल रिसीट ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू रिसीट, सो स्टूडेंट्स रेवेन्यू रिसीट क्या होती है, हमारी डेली नेचर के जो भी हमारे गेन्स होते हैं, इनकम होते हैं, फॉर एग्जांपल सेल ऑफ गुड्स दैट इज अ रेवेन्यू रिसीट, राइट। एंड कैपिटल रिसीट स्टूडेंट्स क्या हुई, so capital receipts are the income that we gain, that we earn from the sale of an asset. आपने कोई फॉर एग्जांपल मशीनरी सेल करी, नाउ इट हैज बीन ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू रिसीट, लाइक आपको आपने मशीनरी सेल करी और आपको 10 लाख रुपीस रिसीव हुए, सो दिस हैज बीन ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू रिसीट, आपने वहां पर गलत एंट्री करी हुई है, 10 लाख रुपीस फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, तो इन दैट केस ऐड टू लायबिलिटी और डिडक्ट फ्रॉम एसेट अकाउंट, तो आप अपने जो आपने एसेट अकाउंट में था उसको लेस करोगे, देन डिडक्ट फ्रॉम इनकम अकाउंट। सो दो ये इसके इम्पैक्ट्स हैं। One question, we have 10 minutes before the doubts session. So एक question आज discuss करते हैं, उससे ज़्यादा हमारे को clarity होगी, understanding होगी to prepare the final account. So whenever the question says prepare final account, so we know we have to prepare three accounts. हमें पता है we have to prepare the trading account, then we have to prepare the P&L account, and then we will do the balance sheet. So students हमारे पास एक full fledged question है। हमारी approach ये होगी कि हम साथ के साथ discuss करते जाएं कि कौन सी फिगर हमारी कैपिटल में आएगी, कौन सी फिगर हमारा अमाउंट ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, which amount will come under the P&L account and which amount will come under the balance sheet. And last 10 minutes will be for your doubts and queries.
So first of all, students, see illustration 7 of the book. Saroj Khanna has been trading for some years in food grains. The following list of balances has been extracted from her ledger as on 31st March 2017, the end of recent financial year. So students, first of all, we have capital, 83,887. Then we have sales. Then we have creditors, trade creditors, return outward, provision for bad debts, discount allowed, discount received, purchases, return inward, carriage outward, drawings, carriage inward, rent, rate and insurance, heating and lighting, postage, stationery and telephone, advertisement, salary and wages, bad debts, cash in hand, cash at bank, stock, trade debtors, fixture and fittings, provision for depreciation, fixture and fitting at the end 31st March 2017, depreciation stock as of 31st March 2017. So students, basically हम 1st April 2016 to 31st March 2017, 16 and 17 का अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं 2016 to 2017. First of all, let's discuss capital. हमें पता है it will be shown in the balance sheet. So capital balance sheet में जाएगी. Sales कहाँ show होगी? Sales will come under the credit side of the trading account. Trade creditor कहाँ जाएंगे हमारे balance sheet में? Return outward. Return outward means returns को बाहर जाना. Outward means purchases return. तो ये हमारी trading का part है. Provision for bad debts. Provision for bad debts हमारे लिए profit and loss account का part है. Discount allowed also it's a part of a trading account because ये direct हमारे indirect expenses है. ये इनडायरेक्ट इनकम हुआ, डिस्काउंट रिसीव हुआ, P&L में क्रेडिट साइड, purchases will come under the trading account, return inward will also come under the trading account because return inward हमारी sales return है. Carriage outward है तो ये हमारा P&L का पार्ट है. If there is a carriage inward, so carriage inward will come under the trading account. Drawings हमारी कहाँ जाएंगी? कैपिटल में ऐड होती हैं ड्राइंग्स हमारी बैलेंस शीट में. Carriage inward will come under the trading account. रेंट रेट एंड इंश्योरेंस ये सारे स्टूडेंट्स हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं जो पीएनएल का पार्ट है. रेंट रेट एंड इंश्योरेंस, हीटिंग एंड लाइटनिंग, पोस्टेज, एडवर्टाइजमेंट, सैलरी एंड वेजेस, ये सारे हमारे बैड डेट्स. दिस विल कम अंडर द ट्रेडिंग अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट में दिस विल कम अंडर पीएनएल अकाउंट. नाउ कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक ये हमारे एसेट्स है, सो दिस विल कम अंडर द बैलेंस शीट. स्टॉक एज एट फर्स्ट April, सो ओपनिंग स्टॉक है, ट्रेडिंग का पार्ट है. डेटर्स कम अंडर द बैलेंस शीट. फिक्चर एंड फिटिंग एट कॉस्ट, जो हमारे फिक्चर एंड फिटिंग फर्नीचर हमारे लिए एसेट है, तो इट विल कम अंडर द बैलेंस शीट. डेप्रीसिएशन हमारा पीएनएल का पार्ट है, इट्स एन एक्सपेंस. क्लोजिंग स्टॉक हमारा एसेट भी है और ये हमारा दो इम्पैक्ट्स हैं. क्लोजिंग स्टॉक हमारा सी स्टूडेंट्स, अगर क्लोजिंग स्टॉक हमारे को ट्रायल बैलेंस में गिवन है, ये इसके रिगार्डिंग हमारे पास कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ये लेजर में ही हमारे को क्लोजिंग स्टॉक गिवन है. सो इन दैट केस हमारे पास इसके दो इम्पैक्ट नहीं होंगे, इसका सिर्फ वन इम्पैक्ट ही हम शो करेंगे. टू इम्पैक्ट्स हमारी सिर्फ एडजस्टमेंट्स के होते हैं. सो लेट्स डिस्कस द एडजस्टमेंट्स. फर्स्ट एडजस्टमेंट इज इंश्योरेंस हैव बीन प्रीपेड. सो प्रीपेड एक्सपेंस है हमारे पास, तो जब भी हमारे पास प्रीपेड एक्सपेंस है, प्रीपेड मतलब हम पहले से पे कर चुके हैं. प्रीपेड इंश्योरेंस है 1120. सो हमारे पास इंश्योरेंस कितना गिवन है? सो स्टूडेंट्स आप देखो हमारे पास पीएनएल में इनडायरेक्ट एक्सपेंस है रेंट रेट एंड इंश्योरेंस, एंड दिस इज आई थिंक 11,010. सो इसमें प्रीपेड है 1120, सो हम लेस कर देंगे बिकॉज ये प्रीपेड है, ये हम पहले से पे कर चुके हैं, पहले से पे कर दिया नेक्स्ट ईयर का. दिस अमाउंट इज प्रीपेड, सो दिस विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द करंट ईयर एक्सपेंस. और इस प्रीपेड अमाउंट को हमारे लिए ये एसेट है, प्रीपेड एक्सपेंस हमारा करंट एसेट होता है, तो इसको हम बैलेंस शीट में एसेट साइड में शो करेंगे. सो ये अभी मैं आपके साथ ओरली डिस्कस कर रही हूँ. अभी हम जब इसको प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे, जब इसका सोल्यूशन देखेंगे, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस का वन ट्रीटमेंट हो गया कि हम इसको पीएनएल अकाउंट में से डिडक्ट करेंगे, एंड देन दिस अमाउंट ऑफ 1120 विल बी शोन एज इन current asset in the balance sheet. Next is heating and lighting expenses accrued by 1360. Students, accrued expense और हम कहें outstanding expense, they both means the same thing. Accrued income or outstanding income both means the same thing. Heating and lighting expenses accrued by 1360. So outstanding expense है, accrued बोलो या outstanding बोलो, one and the same thing. Outstanding expense means due हो चुका है but आपने pay नहीं करा, so since due हो चुका है तो this will be added back. Heating and lighting expense हमारे पास है 2410. So this amount has become due but not yet paid. So this 1360 will be added in P&L account. First impact is prepaid less होगा तो outstanding add होगा, and since ये हमें pay करना है, due हो चुका है but pay नहीं करा, so this will be a liability in the balance sheet.
थर्ड इज रेंट हैव बीन प्रीपेड, अगेन अ प्रीपेड एक्सपेंस, तो हम ये रिड्यूस करेंगे पीएनएल में से और बैलेंस शीट में एसेट्स में शो करेंगे। फोर्थ एडजस्टमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इज टू बी एडजस्टेड सो दैट इट इज 3% ऑफ ट्रेड डेटर्स। सो हमारे को प्रोविजन क्रिएट करना है बैड डेट्स का, कितना बनाना है 3% ऑफ ट्रेड डेटर्स। सो स्टूडेंट्स हमारे पास ट्रेड डेटर्स हैं कितने 2450, 24,500 के हमारे पास ट्रेड डेटर्स हैं। इसका 3% व्हेन वी कैलकुलेट 3% ऑफ 2450, 24,500, सो दिस कम्स आउट टू बी 3%, this is 735। So आपको एक प्रोविजन क्रिएट करना है, so provision will be shown in the P&L account। P&L account में डेबिट साइड में हम शो करेंगे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, एंड बैलेंस शीट में हम ट्रेड डेटर्स 24,500 में से डिडक्ट करेंगे प्रोविजन ऑफ 3%, राइट। सो स्टूडेंट्स ये थे हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की एडजस्टमेंट। सो अब हम प्रॉपर क्वेश्चन करते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा प्रोफॉर्मा होगा, वी विल राइट अबाउट द सरोज खन्ना ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, बिकॉज ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट हम पूरे ईयर का बना रहे हैं। सो फॉर द ईयर एंडेड व्हेन वी विल प्रिपेयर द बैलेंस शीट, तो हम बैलेंस शीट में लिखते हैं एज एट 31 मार्च, बिकॉज बैलेंस शीट हम सेम डेट एज इट्स उस डेट पर बना रहे हैं, whereas trading and P&L account is for the entire year and balance sheet is for that particular point of time। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम ट्रेडिंग अकाउंट में शो करेंगे ओपनिंग स्टॉक। आप देखो स्टॉक एज एट 1 अप्रैल 2016 ओपनिंग स्टॉक है 15,654। सो दिस इज करेक्ट। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक। देन वी हैव परचेजेस। हमारे पास परचेजेस हैं 1,35,680 की परचेजेस हैं। परचेजेस में से हम लेस करेंगे परचेजेस रिटर्न, जिनको हम रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं, 13,407। सो 1,35,680 में से 13,407 हमने परचेजेस लेस करी ओपनिंग स्टॉक में से। देन हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंस में है कैरेज इनवर्ड। यस, हमारे पास कैरेज इनवर्ड है। कैरेज इनवर्ड हमारा ट्रेडिंग का पार्ट होता है 11,830, राइट। नेक्स्ट इज हमारे पास सेल्स है, वी हैव सेल्स ऑफ 2,59,870। क्या हमारे पास सेल्स रिटर्न है? इज देयर एनी सेल रिटर्न? इज देयर एनी रिटर्न इनवर्ड? यस, वी हैव रिटर्न इनवर्ड। हमारे पास सेल्स रिटर्न भी है क्वेश्चन में 4,562। सो ये हम ट्रेडिंग में से रिड्यूस करेंगे। रिटर्न इनवर्ड है हमारी 5,624। 5,624 हमने रिड्यूस करा तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करके आ गया 1,04,489। सो नाउ वी हैव द ग्रॉस प्रॉफिट 1,04,489। So now we will transfer this gross profit to the P&L account। So हमने यहाँ पर gross profit BD ट्रांसफर करा 1,04,489। So अब हमारे पास जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं और इनडायरेक्ट इनकम है वो हम शो करेंगे P&L में। सबसे पहले क्रेडिट साइड में देखते हैं इनडायरेक्ट इनकम्स कौन सी है हमारे पास। We have only one, discount received। So हम डिस्काउंट रिसीव को शो करेंगे 1750 इन द क्रेडिट साइड ऑफ द P&L अकाउंट। नाउ जितने भी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो हमारे आ जाएंगे डेबिट साइड। सैलरी एंड वेजेस, डिस्काउंट अलाउड, कैरेज आउटवर्ड, रेंट, रेट्स एंड इंश्योरेंस। स्टूडेंट्स अब हमारे पास सबसे पहले एडजस्टमेंट थी इंश्योरेंस हैव बीन प्रीपेड 1120 और रेंट, रेट्स एंड इंश्योरेंस है हमारे पास 25,973। तो इसके अंडर वी हैव अ प्रीपेड इंश्योरेंस ऑफ 1120। सो वी विल रिड्यूस दिस प्रीपेड इंश्योरेंस 1120 एंड देन रेंट, रेट्स एंड इंश्योरेंस। तो इसमें रेट भी कवर्ड है, प्रीपेड रेट है 5435। सो हम साथ में ही दोनों को रिड्यूस करेंगे। रेंट, रेट एंड इंश्योरेंस हमारे पास कंबाइन है और दोनों के इंश्योरेंस भी प्रीपेड है और रेट भी प्रीपेड है। सो 1120 प्लस 5435। सो प्रीपेड एक्सपेंसेस हमने लेस कर दिए। नेट हमारे पास रेंट, रेट एंड इंश्योरेंस आ गए। देन हमारे पास हीटिंग एंड लाइटनिंग एक्सपेंस है 11,020। इसकी एडजस्टमेंट है कि हीटिंग एंड लाइटनिंग एक्सपेंसेस इज अक्रूड। सो स्टूडेंट्स किसी को डाउट भी था पहले आया कि आउटस्टैंडिंग एंड अक्रूड में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे आप बोलो अक्रूड एक्सपेंस और बोलो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इट मीन्स द सेम। बस टर्म डिफरेंट लेते हैं कि जब भी हमारे पास इनकम की बात करेंगे ना तो हम बोलेंगे अक्रूड इनकम अर्न बट नॉट रिसीव। सो इनकम के लिए हम अक्रूड टर्म यूज करते हैं, एक्सपेंस के लिए मोस्टली हम टर्म यूज करते हैं आउटस्टैंडिंग। बट अब देखो इस केस में एक्सपेंस के लिए भी अक्रूड यूज करा हुआ है, सो देयर इज नो डिफरेंस एज सच, दोनों सेम है। आउटस्टैंडिंग इनकम बोलो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का हो, या अक्रूड एक्सपेंस का हो या अक्रूड इनकम का हो, इट मीन्स द सेम। अक्रूड इन आउटस्टैंडिंग मीन्स द सेम। दोनों का यही मीनिंग है, अर्न बट नॉट येट रिसीव्ड, ड्यू हो चुकी है बट मिली नहीं। सो इन दैट केस आउटस्टैंडिंग जो भी हमारे एक्सपेंसेस होंगे हम उनको ऐड बैक करेंगे बिकॉज वो ड्यू हो चुके हैं, दैट रिलेट्स टू द करंट ईयर। एंड सेकंड इम्पैक्ट क्या होगा, दिस विल कम अंडर द बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। देन हम सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, पोस्टेज, एडवर्टाइजमेंट, बैड डेट्स, डेप्रिसिएशन, प्रोविजन। अब स्टूडेंट्स प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमारा कैसे आया, 3% ऑफ द डेटर्स। हमारे पास डेटर्स हैं ट्रायल बैलेंस में, डेटर्स इन 24,500 और एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग हमारे को 3% का प्रोविजन बनाना है विच इज 735। बट इन द क्वेश्चन वी हैव अ प्रोविजन। क्वेश्चन में हम देखते हैं तो हमारे पास ओल्ड प्रोविजन है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स
सी स्टूडेंट्स हमारे पास ओल्ड प्रोविजन गिवन है क्वेश्चन में, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 512। सो जब हम इसको डिस्कस कर रहे थे तो न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन, न्यू प्रोविजन स्टूडेंट्स हमारे पास है 735 का, राइट, लेस द ओल्ड प्रोविजन। सो अब हमारे पास नेट प्रोविजन कितना हुआ, ओल्ड प्रोविजन न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन करके जो भी हमारा बैलेंस होगा अमाउंट को हम पीएनएल में दिखाएंगे। स्टूडेंट इसको प्रोविजन को समझने के लिए एक बहुत अच्छा एक आपके लिए एक एग्जांपल है। तो जो भी हमारे को एडजस्टमेंट में इन्फॉर्मेशन होगी, एडजस्टमेंट में हमें बताया कि हमें प्रोविजन क्रिएट करना है 3% ऑफ डेटर्स का, मतलब हमें 3% ट्रेड डेटर्स का एक अपने पास एक प्रोविजन बनाना है विच इज 735, राइट। सो हमारे पास 735 अमाउंट होना चाहिए प्रोविजन में। ऑलरेडी कितना हमने बनाया हुआ है हमारे लेजर में 512। सो 735 का हमारे को पिगी बैंक में सपोज प्रोविजन डालना है 735। ऑलरेडी कितना बना हुआ है 512 का। सो बैलेंस कितना और डालें कि हमारा प्रोविजन 735 हो जाए। सो दैट अमाउंट इज दोनों का डिफरेंस, इसलिए हम न्यू माइनस ओल्ड करते हैं विच इज 223, बिकॉज हम चाहते हैं कि हमारे पास टोटल प्रोविजन कितना हो 735। ऑलरेडी बना हुआ है 512 का, ऐड कितना और न्यू प्रोविजन बनाएंगे 223, सो दैट हमारे पास टोटल प्रोविजन हो 735। सो हम बैलेंस जब करेंगे तो वी विल गेट अ नेट प्रॉफिट ऑफ 6,367। नाउ अब बैलेंस शीट बनाएंगे, बैलेंस शीट में कैपिटल हमें गिवन है उसमें ऐड करते हैं नेट प्रॉफिट, जो भी हमारी ड्राइंग्स हैं उसको लेस करेंगे, ट्रेड क्रेडिटर्स, और जो हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस थे जिनको हमने ऐड करा पीएनएल में, आउटस्टैंडिंग है मींस ड्यू हो चुकी है बट पे नहीं करा, पे नहीं करा तो मींस फर्म के लिए लाइबिलिटी है। सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लाइबिलिटी साइड में, और जो भी हम एक्सपेंसेस प्री पे कर चुके हैं पहले से तो वो हमारे लिए एसेट रहेंगे। एसेट साइड में आप देखोगे प्रीपेड एक्सपेंसेस है, कैश इन हैंड, कैश इन बैंक, ट्रेड डेटर्स हमारे को है, ट्रेड डेटर्स में से लेस प्रोविजन करा, नेट डेटर्स आ गए, स्टॉक इन हैंड, फिक्सचर्स एंड फिटिंग, फिक्सचर्स एंड फिटिंग हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, और इसके साथ ही हमारे को लेजर में ही डेप्रिसिएशन की इन्फॉर्मेशन है, डेप्रिसिएशन 12074, एंड देन वी हैव फिक्सचर्स एंड फिटिंग एट कॉस्ट 1,02,990 का हमारे पास फिक्सचर्स है, मींस फर्नीचर है, और डेप्रिसिएशन है 63,020, सो हम उसको रिड्यूस कर देंगे, 39,970 हमारे पास नेट एसेट्स आ गए। सो जब आप टोटल करोगे यू विल गेट द लायबिलिटी साइड एंड एसेट साइड इक्वल। सो स्टूडेंट्स बेसिकली ये एक फर्स्ट स्टार्टिंग क्वेश्चन था फॉर फाइनल अकाउंट्स। नाउ फॉर योर होमवर्क, आपको रिमेनिंग क्वेश्चंस जितने भी इलस्ट्रेशंस हैं वो प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज फाइनल अकाउंट्स में यही मेन चीजें हैं, आपको ट्रेडिंग बनाना है, पीएनएल बनाना है, एंड देन यू हैव टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट विद ऑल द एडजस्टमेंट। इन द नेक्स्ट क्लास में एक और क्वेश्चन डिस्कस करूंगी जिसका लेवल थोड़ा सा इससे अप होगा, जिसमें ज्यादा एडजस्टमेंट्स आएंगी। सो बेसिकली बाय द नेक्स्ट क्लास आपका फाइनल अकाउंट्स चैप्टर ओवर हो जाएगा, बिकॉज फाइनल अकाउंट्स में यही मेन है, आपको ये तीनों अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं विद ऑल द एडजस्टमेंट्स। So practice as much as you can, and thank you for your time and patience. Thank you students. Have a nice day.